Good morning, Sachin ji. Good morning, Raju. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. I'm fine. Good Sorry, actually, morning. I'm at my workplace. Sorry, hometown. So there Oh, I must be some network issue actually. see. Good morning, Rajesh ji. Yeah, good morning, Sachin sir. How are you? I'm fine, thank you, sir. So let me share my screen. So overall market is in a neutral zone. Let me open the Excel sheet. So based on the advanced decline, overall market is in bearish. Nifty also looks bearish because trading below the VWAP, and Bank Nifty is trading above VWAP. So let's look at the Excel sheet, what we are getting in the Excel sheet based on the OI data. So one question in this Excel sheet, when we see this OI data and the PCR ratio, so should we take the 50th strike for selling or should we take the 100th strike for selling? Normally, I'm taking 100 strike. Okay. You can like to analyze the support and resistance. I am using 100 strike, and for execution, you can take 50 strike. Mhm. But if we are getting good premium 100, so I prefer my preference is 100. Okay. And once we do this naked selling, should we take the stop loss or should we do adjustment in this intraday naked selling? Normally, I am keeping like 1,000 rupees stop loss for one lot, like Oh, in Nifty. in Nifty. Okay. In Nifty, and same as like Bank Nifty also, because my target is like 20 points, like 20 points in Nifty. Okay. So like let's say 20 point stop loss and 20 point like target. Okay. So whichever comes first, you take that. But I'm not using the stop loss in the system. Like I'm just Okay. keeping in mind, and Oh, like whenever I'm getting loss, so I try to analyze the data, like what is happening. Like is it like data is changing or not? okay. If data is changing, then I can like exit the trade, Mhm. or do we do some adjustments. And if data is not changing, like, so I prefer to stay in that trade, because we know if data is not changing, that the moment we are getting now, it's a fake, like false moment, like, Correct. and it will fall like eventually if data is not changing. Mhm. So we can hold the Okay. position. We can hold the position. Mhm. So it's like a manual trading. Like we have to like analyze things manually, and Mhm. based on that we are taking the decisions. Like, Okay. so it is taking time. Let me reopen it. So you are in Jaipur or Kota? Actually, right now I am at my hometown, like in Hapur, Okay. UP, Uttar Pradesh.
Oh, okay. So it is near to my place, Ghaziabad. Okay. So you are in Ghaziabad right now? Yeah, yeah. Okay. मेरा होम टाउन एक्चुअली हापुड़ी है, तो मैं Okay. अभी लाइक सैटरडे को मैं आया था, तो शायद मे बी टुडे और टुमारो आई विल लाइक बैक टू जयपुर. Okay. Because there is a lot of raining here, no? So maybe Right. because of it. That's why the network issue, like. Because So in this Excel sheet in the morning it was showing neutral, but now it is showing bearish. because market is also like in bearish territory. Like overall, if you look at this chart Mhm, of Nifty chart, this look bearish. Like it goes down, mhm. got is some reversal, and again it fell like from VWAP. So we can sell the call. Like we can sell the call. Like what is the support? I don't know. My Excel sheet is not opening. So maybe it's in Excel sheet it is showing maybe 17,300 we can sell. Because resistance is at 17,250 PCR. And what about the 17,200? It's 0.74, so it is not resistance. Okay, and 1730, what is the like PCR ratio? 0.28. Okay, and the premium 52 around. 52. Because We can sell 17,300. $17,300. Yes, we can sell 17,300 today, like around trading around 47. so if we sell this 17,300, then if data changes in 17,250 call, then we take the stop loss of 20 rupees. That is what should be, or should it be something different? We can keep like 20 rupees stop loss. Okay. So whether data change or whether data doesn't change. We will follow the 17,200. Like if 17,000 like if resistance is breaking, then we will do some adjustments, or we can square off the position of 17,300. Don't know, Excel sheet is not opening.
So should we see the only OI data or should we see the price action also on the chart? So like overall trend is down, let's say. So normally I prefer to go with the OI data. Okay. But for entry, I'm using like VWAP. Okay. Just for entry, like. So near VWAP we sell or we buy? We sell हाँ normally. yes, near VWAP. Right. And at 5-minute chart, right? हाँ, on 5-minute chart. Okay. So this is the perfect setup I prefer to like trade. Mhm. Like when market like trend is bearish, so Nifty Hmm. goes down, Hmm. थोड़ा रिकवर हुआ, Hmm. VWAP के बाद से फिर से वापस ये नीचे आना शुरू हो गया. तो ये Hmm. जो ये कैंडल के बाद की जो ओपनिंग है, यहाँ पे मैं सेल करना इसको प्रेफर करता हूँ. Okay. और नॉर्मली ये होता है कि मार्केट जाता है, ओपनिंग आवर्स का जो भी प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर वो 11 और 11:30 के आसपास वो वापस से एक बार मार्केट रिवर्स होके VWAP के पास आता है. Hmm. सो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है तो वो फिर वापस से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना शुरू कर देता है. और अगर कुछ उसको रिवर्सल होता है या वो वापस यहाँ पे बाइंग आ गई है, तो वो वापस रिवर्स हो रहा है, तो फिर वो वापस यहाँ से चला जाता है. Okay. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट नीचे गया या Hmm. मार्केट जैसे ये VWAP है, जैसे हाँ. मार्केट जैसे नीचे गया Hmm. और फिर ये रिवर्स हुआ, Hmm. और ये फिर हम लोग वेट कर सकते हैं कि क्या कैंडल इसके नीचे क्लोज हो रही है कि नहीं. तो जैसे Hmm. नीचे कैंडल क्लोज हो रही है, हम यहाँ पे उसको शॉर्ट कर देंगे. सेम Hmm. ऐसे ही अगर मार्केट ऊपर गया है, Hmm. फिर वापस रिवर्स हुआ है, तो Hmm. हम लोग उसको वेट कर सकते हैं कि क्या ये जो नेक्स्ट कैंडल है वो VWAP के ऊपर वापस से रिवर्सल सिग्नल देके ऊपर क्लोज हो रही है कि नहीं. जैसे हो रही है तो हम लोग यहाँ से बाई की एंट्री ले लो, या फिर अगर अब पुट सेल करना है तो पुट सेल करने की एंट्री ले लो. Okay. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जैसे मार्केट अभी नीचे जा रहा है, VWAP की जितनी दूर होगा उतना आपका रिस्क बढ़ जाएगा. तो यहाँ से अगर ये वापस रिवर्स होता है ना, हाँ. तो हाँ. आपको वेट करना पड़ेगा. आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो रिवर्स हो गया है ट्रेंड की नहीं हुआ. तो मे बी ये जस्ट ए पुल बैक. हाँ. हाँ. अब उसमें क्या होगा कि आपका जो 20 रुपी का स्टॉप लॉस है ना, वो ट्रिगर हो जाएगा इसमें. Okay. Okay. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे सो दैट कि जो ये जो बफर है ना, ये बफर हमारा जो 20 रुपी का स्टॉप लॉस है इस बफर में आए. और मार्केट अगर इस टाइप से मूवमेंट दे रहा है डिपॉजिट का, दैट मीन्स कि ट्रेंड कहीं चेंज हो रहा है. Okay. अगर वो मतलब रेजिस्टेंस पे मतलब नीचे ना आकर ऊपर ही निकल जाए VWAP के, हाँ, तो वो चेंज हो रहा है. वो थोड़ा चेंज हो रहा है. अभी कई ओके. बार क्या होता है, जैसे ऐसे जाएगा फिर ये हाँ. थोड़ा ऊपर चला जाएगा, हाँ. लेकिन क्योंकि ट्रेंड इसको जाना इसको नीचे ही है, तो ये सब इसको आप कह सकते हो स्टॉप लॉस हंटिंग गेम जो है. ओके. फिर वापस से वो नीचे चला जाएगा. ओके.
है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से गया मार्केट ऊपर गया फिर वो नीचे आया, हाँ अब यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं कि क्या वो रिवर्स होके वापस से नीचे जा रहा है कि नहीं। हाँ हाँ अगर हमें कंफर्मेशन मिल रहा है तो हम लोग इसको वापस से वो शॉर्ट कर देते हैं। तो ये जो मूवमेंट है ना, ये वाला जो स्पाइक है और ये जो स्पाइक्स है, इनसे हम बच जाते हैं लाइक। और यहाँ पे एक वैलिड रीजन होगा आपको ट्रेड लेने का कि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, हाँ आपको ऑपरेटर्स की जो शीट है वो भी बियरिश दिखा रही है, और नाउ मार्केट भी अभी ये लाइक वेव के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है इसने। ओके और इसी तरीके से लाइक होता है, आप देखोगे ना पीछे का भी चार्ट अगर आप देखोगे, हम्म लेट्स से मैं ये करता हूँ, तो ये देखो आप, मतलब आप हर दिन आप देखो यही होता है, शुरू में मार्केट ने एक मूवमेंट दिया, फिर वो वापस रिवर्स हुआ, रिवेट तक आया और फिर वहां से वो चलना शुरू हुआ। ओके मार्केट यहाँ से नीचे आया, हम्म फिर ये वापस रिवर्स हुआ और फिर हम्म ये वापस गिरा यहाँ से, फिर ये थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट हुआ है, ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन फाइनली वो यहाँ से नीचे ही चला गया, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड डाउन ही था। ओके तो यहाँ पे आप देखो कि आपको क्या नाम है, आपकी शीट भी आपको बियरिश मूवमेंट दिखा रही है, ओवरऑल सेंटिमेंट भी बियरिश है। हम्म तो लाइक आप ये जो अपोजिट मूवमेंट है इसको आप छोड़ सकते हो लाइक। ओके सो लाइक अराउंड 10:30 से लेके 11 के बाद आपको एंट्री उसे मिल ही जाएगी, लाइक जैसे नीचे आया, फिर यहाँ हम्म से वापस रिवर्स हुआ, हाँ फिर हाँ यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ। ओके तो ये अराउंड आप देखोगे ना कैंडल के हिसाब से, तो ये अराउंड 11 के आसपास की कैंडल होगी, ये 11:50 की कैंडल है ये, सॉरी 10:50, ओके 10:55 एंड 11। हम्म तो लाइक सो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, 10 बजे के बाद इसको एनालाइज करना शुरू करते हैं, लाइक क्या ट्रेंड बन रहा है क्या है। और हर दिन देखो, आप देखोगे ना हर दिन सेम ऐसे ही हो रहा है, मार्केट गया ऊपर, फिर नीचे आया रिवेब से, और फिर वहां से वो वापस ऊपर गया। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होगी तो यहाँ पे इजीली आपका 20 रुपए का टारगेट आपको अचीव हो जाएगा, आप बुक करके निकल जाओ। करेक्ट तो स्टार्टिंग में आप 20 रुपए का ऐसे कर सकते हो कि 20 रुपए का स्टॉप लॉस रख लिया, 20 का मैंने टारगेट रख लिया। फिर बाद में जब थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, थोड़ा लाइक प्रॉफिट भी आ जाएगा हमारे पास रिस्क लेने के लिए, तो फिर आप पूरा ट्रेंड को लाइक कैरी भी कर सकते हैं उसको। ओके तो तीन चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो लाइक क्या उसका ट्रेंड है, बियरिश है बुलिश है, ओआई के हिसाब से। आई ओके डोंट नो मेरी एक्सेल शीट क्यों नहीं खुल रही, हाँ खुल गई। तो इसके हिसाब से हमने देखा कि क्या है। हाँ ठीक है, अब जैसे बियरिश है, हम्म ठीक है हमें बियरिश है, दैट मीन्स कि हमें आज इसका मार्केट का डाउन है, तो फिर चार्ट पे देख लिया, चार्ट पे भी में डाउन दिखता है, और फिर अब मैं क्या करता हूँ, फिर एक ओवरऑल सिनेरियो देख लेता हूँ, लाइक ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है, सेक्टर के हिसाब से क्या हो रहा है। हम्म अब यहाँ पे देखो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो कितना लाइक कंप्लीट बियरिश है, और यहाँ पे सेक्टर्स भी आप देखो कि मोस्टली सेक्टर्स नेगेटिव है। करेक्ट तो दैट मीन्स कि ओवरऑल जो सिनारियो है, मतलब जो ओवरऑल जो मार्केट का जो वो है, वो एक तरह से निगेटिव ही है। हम्म तो निगेटिव है, अब हमें पता चल गया कि हमें निगेटिव है, तो हमें क्या करना है, हमें कॉल सेल करना है। हम्म तो अब कॉल सेल करना है, तो कॉल कौन सी सेल करनी है, फिर हम उसको करते हैं लाइक पीसीआर के हिसाब से चूज। हम्म और सबसे पहले मैं लाइक 100 वाली देखता हूँ, लाइक जैसे ये 17,200 नोट सपोर्ट, 17,325 है, और 17,400 ये सेकंड हो गया एक तरह से। तो आप हम्म 70,004 अगर बेचोगे तो वो बहुत ज्यादा लाइक
सेफर रहेगा हम्म, यहाँ से, हम्म, ठीक है। बट थोड़ा प्रीमियम कम कम मिलेगा तो थोड़ा आप क्या कर सकते हो, 17,350 आप बेच दो। ओके, तो अब आपको क्या करना है, 17,350 आपने बेचा और आप ट्रैक क्या करना है, 17,200। तो 17,200 में तो जैसे अभी रेजिस्टेंस है। 250, सॉरी 250, हाँ, 17,250 और यू कैन से 17,300। ओके, तो इन दोनों का पीसीआर को आपको ट्रैक करना है। ओके, जब तक ये मेरा सपोर्ट है, मतलब सॉरी रेजिस्टेंस है, तब तक मुझे 17,350 की कोई चिंता नहीं है, ओके, क्योंकि हम्म, है ना। तो 17,000 तोड़ेगा तभी 17,015 जाएगा। तो अगर कभी ऐसा मूवमेंट मुझे मिल भी रहा है अपसाइड का, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है, पीसीआर में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कोई नई पोजीशन वो नहीं हो रही है, कोई स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहा है पोजीशन, दैट मीन्स कि उनको पता है कि 70,000 तो ये तोड़ने वाला नहीं है। तो ओके, क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा फिर वापस से वो नीचे गिर जाता ओके, है। अब इस बीच में थोड़ा मार्केट की साइकोलॉजिकली भी रहती है, तो इस बीच में क्या होता है, लोग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं और लोगों लाइक जो साइकोलॉजिकली लाइक थोड़े वैसे होते हैं, तो वो लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं। हम्म, ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप हम कह रहे हैं 20 रुपए का लॉस है, बट अभी लॉस हो रहा है उसमें 30 रुपए। हम्म, बट अगर डेटा को चेंज नहीं हो रहा तो हम लोग उसको कर सकते हैं। तो अब उसमें क्या होगा कि अगर आपको प्रॉफिट भी नहीं आएगा तो वो कम तो हो ही जाता है उस दिन, क्योंकि वापस से या तो मार्केट वो ट्रेंडिंग ही रहता है, जब तक वो ऊपर का रेजिस्टेंस टूटेगा नहीं तब तक वो ऊपर तो जाएगा नहीं। तो या तो वो वहीं ट्रेड करता रहेगा या फिर वो नीचे करेक्ट, आ जाएगा। हम्म, और वहीं पे भी ट्रेड करेगा तो लाइक, अब जैसे क्या होता है, जैसे मोमेंट आता है ना, तो एकदम से प्रीमियम स्पाइक होगा और मोमेंट फिर होके फिर वो खड़ा हो जाएगा ना, तो जो स्पाइक आया है ना वो वापस से नीचे आ जाएगा। करेक्ट, तो अभी जैसे मार्केट नीचे गया, अभी आप देखो ये वापस से रिकवर होके वापस से विवेक के पास आ गया है। हम्म, तो अभी या तो आप वेट कर सकते हो कि इस कैंडल को क्लोज होने का, और जो नेक्स्ट वाली कैंडल है उसकी क्या फॉर्मेशन है। ओके, अगर यहाँ पे ये उसके नीचे ही क्लोज हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल हमें एक रेड सिग्नल मिलती है, तो फिर सीधा सीधा उसको वहां पे सेल कर दो और ऊपर में थोड़ा आप स्टॉप लॉस लगा के रख लो वही। तो यहाँ से फिर क्या होगा कि एक अच्छा ट्रेड आपको मिल जाएगा। ओके, अभी आज बैंक निफ्टी में हमें एक प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहा है, मार्केट नीचे गया है फिर वो ऊपर जाके विवेक का वो वापस रिकवर हुई है, फिर यहाँ से वापस से वो ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी। ओके, तो इस टाइप का ट्रेड थोड़ा सा वेट कर सकते हैं जब तक हमें क्लियर एक वो नहीं मिल रहा, वो प्रॉपर एक वेव के नीचे क्लियर लाइक एक इंडिकेशन हमें नहीं मिल रहा। तो एक्सेल में जैसे वो न्यूट्रल दिखा रहा है, तो मतलब देयर शुड नॉट बी एनी इंटरप्रिटेशन आउट ऑफ दैट। हाँ, तो अब इसका ये भी है कि हो सकता है कि जब न्यूट्रल है ट्रेंड तो इसलिए प्रॉपर कहीं वो जा नहीं रहा है, लाइक वहीं घूम रहा है। तो कोई स्ट्रैंगल वगैरह का मतलब नहीं सोचना चाहिए। हाँ, उसमें अगर न्यूट्रल ट्रेंड है तो फिर आप सोच सकते हो स्ट्रेंगल, आप दूर का थोड़ा सा बेच दो और इधर बेच दो आप थोड़ा। बट स्ट्रेंगल में फिर थोड़ा प्रीमियम आपको इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, लाइक ओके, जैसे यहाँ पे हमारा निफ्टी में 20 रुपए का टारगेट है, यहाँ पे 40 रुपीज का टारगेट है, तो 40 रुपीज नहीं मिलेंगे, बट ठीक है। आपको अगर उस दिन 10 रुपए या 20 रुपए मिलते हैं तो वो भी ठीक है। ओके, तो अगर बैंक निफ्टी की हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी का जो एक आप ये कह सकते हो कि 17,500 है, जो एक जिसको कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है, और सो 38,500, और इसका प्रीमियम अराउंड 150 चल रहा है। तो अगर आप चाहो तो ये भी बेच सकते हो। तो और थोड़ा 38,500 में सर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे, वो तो दो का लेते हैं ना पुट का। नहीं, 5.25 है ना, हाँ, टू लेकिन से
मतलब जैसे अगर आप देखें 38,800 जो है 3.19 है, तो वो भी सपोर्ट होगा ना, जैसे 2 हाँ के देखो, ऊपर। इमीडिएट इमीडिएट जो सपोर्ट है वो तो ये है लाइक हाँ 38,800 ये। हाँ। बट क्या है कि ये थोड़ा सा पास में है, ओके। तो अगर हम थोड़ा सा दूर रहेंगे, थोड़ा सा बाउंड्री लाइक ये बिल्कुल बाउंड्री के पास ही है, लाइक फर्स्ट तो ये हो गया, तो या तो आप ये कर सकते हो 78,000 फर्स्ट हो गया, आप थोड़ा 70 मतलब 38,700 बेचो या तो। हम्म। पर ये थोड़ा सा लाइक पास में ही है, तो थोड़ा सेफर जाने के लिए आप क्या करो 38,000 से, लाइक वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 100 पॉइंट का डिफरेंस रख रहे हैं करेक्ट। निफ्टी में, तो हाँ। यहाँ पे आप रख लो 200 पॉइंट्स का डिफरेंस। ओके। लाइक जो फर्स्ट इमीडिएट जो भी आपका सपोर्ट है उसके 200 पॉइंट बिलो का आप भेज दो, लाइक ओके। है ना, जैसे हम 50 वाला छोड़ रहे हैं तो हम लोग एक 100 वाला छोड़ देते हैं यहाँ पे, ऐसे कर सकते हैं हम। तो 38,000 जो 38,600 की जो ये पुट ऑप्शन होगा ना, ये आपका लाइक बहुत सेफर रहेगा आप, क्योंकि पहले इसको 38,800 को तोड़ना है, उसके बाद 30,000 को 7 को तोड़ना है, फिर यहाँ जाना है इसको। तो अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इसको तोड़ रहा है हाँ हाँ। 38,800 को, इसका पीसीआर जो है 2 के नीचे आना शुरू हो गया, तो आप क्या करो, आप इसको या तो स्क्वायर ऑफ करो या फिर आप हम्म। इसको शिफ्ट करके 30,400 ले जाओ। ओके। हम्म। ओके। ठीक है, तो अभी के लिए अगर हम बात करें तो 38,600 कॉल सेल कर पुट सेल कर सकते हो आप, ऐसे ही आप इसमें आ जाओ ऊपर कॉल साइड में। तो या तो ये कि आप सीधा सीधा 3 पॉइंट ऊपर ही देख लो या 300 पॉइंट ऊपर ही देख लो 38,400, क्योंकि फर्स्ट आपका जो ये है आपका ये भी है लाइक 13,100 0.48, और उसके बाद 0.29 39,200। सो फॉर सेफर साइड लाइक तो 13,400 आप बेच सकते हो कॉल ऑप्शन, और इधर 38,600 बेच सकते हो आप। ओके। थोड़ा सा मतलब मेरा ये है कि थोड़ा सा हमें अपने को थोड़ा सेफ भी रखना है, लाइक जो फ्लक्चुएशन होता है ना मूवमेंट मूवमेंट का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये जो मूवमेंट का फ्लक्चुएशन हो रहा है, हम हम्म। इसमें ना कहीं फंसे लाइक। तो अगर थोड़ा सा हम लोग यहाँ बैठेंगे बाउंड्री से थोड़ा सा दूर इस फ्लक्चुएशन के पास में ही रहेंगे, तो फिर इसके चांसेस रहते हैं लाइक ये हिट कर देगा कभी भी, और फिर हमें ओके। कुछ ना कुछ तो उस टाइम करना ही पड़ेगा, या तो हम एडजस्टमेंट करेंगे या फिर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। हम्म। बट अगर हम थोड़ा सा बाउंड्री से दूर हैं तो अपने पास चांस है कि अब ये ट्रेड कर रहा था इसमें, लेकिन अगर ये तोड़ के वापस से नीचे जा रहा है, दैट मीन्स कि अब कुछ ना कुछ इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हैंड आ गए हैं जो अब ये नीचे ले जा रहे हैं इसको, या ओके। सेम ऐसे ही ऊपर जा रहे हैं तो कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड आ गए हैं जो लोग अब इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। ओके। तो अभी आप देखो निफ्टी ऊपर गया और विवेक के नीचे ही क्लोज हो गया, और यहाँ पे आपको बेरिश कैंडल दिख रही है। हम्म। अब इसकी क्लोजिंग पे अगर ये बेरिश कैंडल ही क्लोज हो जाती है तो आपको सीधा सीधा एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, यहाँ पे आप सेल कर दो, और वो अराउंड देखो 11 बजे के आसपास ही हो रहा है। ओके।
फिर आप इसको भी ट्रैक करते रहो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले 1.01 था, अभी 0.91 हो गया है। दैट मीन्स कि कुछ लोग स्काई ऑफ कर रहे हैं पोजीशंस। तो ये क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूस बढ़ता ही जा रहा है। अगर ये बढ़ता ही जा रहा है तो इसका मतलब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। नहीं, बट ये सर जो नेगेटिव आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये मतलब पुट का? इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें ज्यादा लाइक कॉल सेलिंग ज्यादा हो रही है। अच्छा, नेगेटिव है तो मतलब कॉल सेलिंग ज्यादा हो रही है। हाँ भाई, हमने क्या किया है, पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें से माइनस किया है कॉल के ओपन इंटरेस्ट को। तो जब जब ये वैल्यू ज्यादा होगी तो माइनस में जाएगा करेक्ट। कॉल का। और जब हम्म। जब ये ज्यादा होगा तो ये प्लस में चला जाएगा। करेक्ट। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो। अगर हम ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से रीड करें तो क्या हो रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और हम्म। प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस घट रहा है। तो उसके बाद हम्म। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। और हम्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है हम्म। और यहाँ पे वाई भी बढ़ रहा है। हम्म। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो ओके। दैट मीन्स की ट्रेंड डाउन है ना। हम्म। हम्म। यहाँ पे भी शॉर्ट हो रहा होता, यहाँ पे भी शॉर्ट हो रहा होता, तो दैट मीन्स की न्यूट्रल है। यहाँ करेक्ट। पे शॉर्ट हो रहा होता, यहाँ पे लॉन्ग हो रहा होता कि दैट मीन्स बुलिश है। करेक्ट। और यहाँ पे भी हमें देखो ये बियरिश सिग्नल दिखाई रहा है इसलिए। तो जब हमारे पास डेटा निगेटिव बता रहा है, सब चीजें निगेटिव बता रही हैं और लाइक ओवरऑल ट्रेंड भी निगेटिव है, तो अगर इस एक स्मॉल मूवमेंट आता भी है ना अपसाइड का, तो हमारे पास अच्छा कन्विक्शन है कि हाँ ये तो मार्केट तो नीचे ही जाएगा। क्लोज कर दी सर ये कैंडल। हाँ तो देखो अभी ये वापस से आ गया तो हम लोग सेल कर सकते हैं यहाँ पे। ओके। सेल कर दो तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। तो आप इस पैटर्न के हिसाब से आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो लाइक। हम्म। मतलब कि सेल कर दो फ्यूचर को ही मतलब। हाँ फ्यूचर को सेल कर दो, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर लगा दो बस, यहाँ पे जो लास्ट की जैसे ये हाई है इसके ऊपर लगा दो तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अभी देखो क्या हुआ यहाँ पे एकदम से, मतलब जैसे ही वो वीवेब के पास गया है एकदम से सेलर्स आ गए, एंटर हो गए। हम्म। लोगों ने नई पोजीशंस क्रिएट करनी शुरू कर दी यहाँ पे। तो वैसे भी अगर आपको एंट्री लेनी है ना तो वीवेप एक ऐसी होती है जो एंट्री लाइक आपकी सही बिल्कुल सही जगह पे डिसाइड करता है कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। लाइक अगर आप इसको कैश में भी यूज कर रहे हो या आपको कैश में कोई एंट्री लेनी है तो वीवेप लाइक बहुत अच्छा काम करता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। एक सही जगह पे आपको एंट्री मिलती है लाइक उसमें। अभी देखो कितना फास्ट मूवमेंट आता है यहाँ पे। तो आप इस पैटर्न को, और वैसे देखो लिमिटेशंस भी होती हैं, कई बार फेल्स भी होते हैं ये पैटर्न्स, लेकिन ये है कि ये एक अच्छा आप इसको अगर आप इसको यूज करोगे ना तो एक अच्छी रिटर्न आपको मिलेगी, अच्छा आपको इसके अंदर वो दिखेगा। हम्म। रिस्क रिवार्ड रेशो आपका अच्छा होगा। आपने यहाँ पे सेल किया और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो आपका कितना अराउंड मेरे ख्याल से 50 रुपीज का स्टॉप लॉस है। हम्म। और आप इसको कैरी कर सकते हो, कैरी करते जाओ नीचे। वीवेप नीचे आता जाएगा, एक नया हाई आपको मिलता जाएगा, उसके ऊपर अपना टेल करते जाओ। ओके। तो ट्रेंड को अपन पूरा वो करते जाओ। लास्ट में हम्म। 3 बजे के आसपास या 2:30 बजे के बाद देख लो कि बुक करना है या कैसे करना है। ओके।
So do we have any other query? No, sir. Good morning, sir. Puneet this side. Good morning, Puneet. How are you? Good. How about you? I'm fine, sir. I'm fine. Okay. So, sir, one question is that how can we check the trapping, that who is being trapped? Is it a call seller or put seller using the Excel spreadsheet which you have put together? So you just follow this PCR like support and resistance rule, and Mhm. if everything is bullish, bearish, let's say your like sheet is showing bearish, overall like market scenario is like bearish, uh, like price is below VWAP, that means it's a bearish territory, and you can see like short build up on the call side and long build up on the put side. So overall scenario is like bearish, and you can check the sectors also, like what is happening on the sector side. Like like most of the sectors are negative. So overall trend, overall like view for today is bearish. So if everything is bearish, then price will like definitely will go down. Right. So if you are getting any like upside movement, that means it's a false movement, and you can carry the like overall scenario. What is the overall scenario? Okay. But if price is going up, so you have to track like all these things, like data is changing or not. Like if data is changing, and you can see like people is starting like booking the call, like square of the short, they short the calls, like so you will get everything like here. Like right now it's 0.93. Previously it was like 1.01. So like it is not changing that much. So if you see like it's around 0.53, let's say. So from 1 to 5, 0.5. So that means people are starting to like either they are square of the positions, like square of they are booking the profit, or now more people are aggressively like selling puts, started selling puts compared to the previous they were selling calls, like. So if you analyze the data, like what is either data is changing or not. Okay. So based on that you can like form a view like whether this trend is like it's a confirm trend, or it's just a like spike or some like trapping. Right. Yeah. Let's say data is not changing, like your PCR, let's say right now PCR at 17,250 is 0.3 and 17,300 is 0.25. Price is going up, let's say price is going up, but you can see like data is not changing. That means people are not like, neither they are square of the position nor they are booking the profit. So they are more convinced that price like this is the like false like price, and it will like fall anytime. Okay. Right. So you have to like monitor the all these things, like data is changing or not. So one more question is regarding the position sizing. Suppose if I start from 3 lot, and let's say if market goes in my favor and I do the pyramiding, and then I want to sell the, let's say, 6 more lot instead of 3. So is there any tool which I can use for that? It allows me to do this automatic according to my configuration, or I have to do it manually? I think you have to do it manually. Okay. So you want to like every day new load sizing, or like same day. Same day lot Let's sizing. say at 9,
Suppose total quantity is, let's say, 10 lots. So if I start from 3 Let's say lots, you at nine at so let's say you at 9:30 overall you want to sell 10 lots, but at 9:30 you sold only 3 lots, correct, right? right. And then if And if price, trend is going in, right? yeah. Mhm, So if the trend is going in my favor, then I again sell mhm, next time, not 3, let's say 4 or 5, mhm. 4 or 5 lot. Okay, I think you have to like either you have to create your all algo, or because most of the tools are giving a fixed load size. Let's say 9:30, you want to sell at 9:30, so they like square off. Like sorry, they sell whatever the load size you gave. Like Okay. so, what I understand is you are saying like let's say market is bullish, so we sold 3 lot here, and now market is going down, and again we are like getting a fresh entry. So here we sell like 4 lot again, Correct, and correct, again market goes down, and again it is giving us like let's say here entry. So more like 3 to 4 lots again here, correct. है ना? Yeah. So you have to like you have to I think you have to do it manually. Okay. You have to do it manually, or you have to like hire someone, or you have to write your own code like so that Okay. because there are some conditions. You have to put the conditions like Mm-hmm. normally whatever the tools we are using are they simple like they are just show the trade at particular time like at 9:30 Mm-hmm. or whatever the time you are giving like. Okay. But here you have to like now you get this entry around at 11 o'clock also, and you maybe sometimes you will get this entry around 10 11:30. Mm-hmm. So Correct. you have to like code it in a way like whenever we get this type of setup. Mm-hmm. I think there was a tool Quentsman. Okay. Quentsman. They allow to do some like indicator based trading also. Indicator based when price goes above super 10, let's say super 10. So like you can create some indicator based trading like super 10 when it giving the bullish signal, Mm-hmm. then you can place the order or something like that, or moving Oh, average crossovers like. And they allow to deploy these option strategies also like rule based strategies. okay. Okay, now they have launched marketplace also. So you can try this tool also, like it's like a zero the stack streak streak. Okay. Actually, this type of setup is little like more complicated. So because uh, there are certain rules, like you have to make certain rules for these type of trades, like Mm-hmm. so you have to code it manually. Like you have to code it manually, or you can use the ME broker software. You can in ME broker software you can write your code. You can create your strategy, and it will uh, it will trigger the buy and sell signals, and then you can link it to your broker terminal Mm-hmm. through the API something.
So you are Okay. familiar with the codes and or not? Not much. A little bit I am aware of. So It's ME in broker a is Java language or which language? Python language? Which language? I think ME broker has their own language, Oh, okay, okay. So but that is it's similar to Python like. okay. So is there any, I mean, like कोई ऐसा tool नहीं है जिसमें मैं मतलब manually text लिखूं और वो code generate कर दे? ऐसा नहीं है, एक है ट्रेडट्रोन आपने सुना है नाम उसका? हाँ हाँ हाँ, ट्रेडट्रॉन। ट्रेडट्रोन में आप बना सकते हो लॉजिक। अच्छा। ट्रेडट्रोन में आप लॉजिक्स बना सकते हो। मैंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई थी इसके अंदर, रूल बेस्ड, बट आप इसको लाइक इंडिकेटर बेस्ड भी बना सकते हैं इसमें। Okay. अभी जैसे मैंने एक ये स्ट्रेटेजी बनाई थी बैंक निफ्टी की कि मतलब ऑटोमेटिकली टाइम पे ये एग्जीक्यूट करे। तो इस टाइप से लाइक इसमें बनता है सब चीजें। लाइक पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि लेट्स से टाइम इज ग्रेटर देन 920 एंड Okay. पोजीशंस की डिटेल्स के अंदर आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा लाइक वो है, निफ्टी बैंक है कि निफ्टी है, और इज इक्वल टू 0, मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशन नहीं है मतलब इस ट्रेड के अंदर, तो ही एग्जीक्यूट करेगा। लाइक ऐसे नहीं हो कि 920 के ऊपर ये करता ही जाए। Okay. तो अगर कोई पोजीशन नहीं है तो ये ट्रिगर हो जाएगा, और अगर कोई पोजीशन आएगा तो ट्रिगर नहीं होगा। तो Okay. सबसे फर्स्ट जो पोजीशन होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाकी को ये ट्रिगर नहीं करेगा। फिर इस पे मैंने ये भी दिया है कि लाइक वीक डेज कौन कौन से होने चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, लाइक मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। सिर्फ इन 3 दिन लाइक ये होना चाहिए। तो एक कंडीशन बिल्डअप हो गया। फिर Okay. ये कंडीशन के बेस पे आपको करना क्या है, आपको क्या सेल करना है। तो फिर यहाँ पे हमने दे दिया एनएफओ, एक्सचेंज, निफ्टी बैंक है, एमआईएस दाने, करंट वीक और कितने लॉट, ये हमें सेल करना है। एक तो कॉल सेल करनी है, फिर आप इस पे एक पुट सेल करनी है। सेम ऐसे ही हमने पुट के लिए एक ऐड कर दिया इसके अंदर। Okay. यहाँ पे और भी कर सकते हो, आपको लाइक फ्यूचर भी ऐड करना है तो और आप भी लैग ऐड कर सकते हो इसके अंदर। Okay. फिर इसी टाइप से रिपेयर, लाइक कि जो यहाँ का एग्जीक्यूशन प्राइस होगा ऑटोमेटिकली ये इसको रिकॉर्ड करेगा, और फिर उसके बेस पे आप इसको स्टॉप लॉस लाइक। Okay. अब जैसे एलटीपी जो है, जो भी हमारा उसका एलटीपी है, जो ट्रेडिंग जो प्राइस है, इंस्ट्रूमेंट का जो ट्रेडिंग प्राइस है उसका 1.2, यानी 20% स्टॉप लॉस। Okay. तो ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे क्या करना है आपको, जो ये पोजीशन आपने ली है, लेट्स से कॉल है तो कॉल बाई हो जाएगी। यहाँ पे आपने सेल किया है तो वो सेम बाई हो जाएगा। तो जब सब बाई हो जाएगा तो वो एक तरह से एक एग्जीक्यूट हो गया, Correct. लाइक ऑर्डर क्लोज हो गया आपका। सेम ऐसे ही आपने पुट के लिए दे दिया। अब इसके अंदर Okay. ये भी होता है कि लाइक अभी यहाँ पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एट दी मनी की सेल करी, बट यहाँ पे तो प्राइस उस टाइम एट दी मनी कुछ और हो सकता है। Correct. तो इसके अंदर वो है कुछ, जैसे ये एफएक्स है ना, पहले हमने एट दी मनी किया था, जैसे यहाँ पे तो हमने क्या किया है, सिंपल एट दी मनी हमने चूज कर लिया है। लाइक इस पे भी हमने किया राउंड एट दी मनी, Okay. है ना। जो भी लाइक बैंक निफ्टी का जो भी प्राइस होगा उसको हमने उसको राउंड ऑफ करके एट दी मनी की स्ट्राइक ले लेगा वो यहाँ पे। बट यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या किया है कि जो भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी कॉल,
उसको हमने लिया है कि जो भी अभी लास्ट टाइम ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी उसकी जो भी स्ट्राइक है ओके तो ये ऑटोमेटिक उसी को लेगा। वरना अगर सेव कंडीशन आप यहाँ डाल दोगे तो क्या होगा, बाई ये लाइक लेट से उस टाइम एट दी मनी क्या था 39,200 और अभी का एट दी मनी क्या है 39,400। तो ये क्या करेगा 39,400 को बाई कर लेगा। तो अभी आपकी क्या पोजीशन होगी 39,000 सेल करी हुई है और 39,000 बाई होगी। सेम पोजीशन को बाई करेगा तभी वो मतलब ट्रेड क्लोज होगा वो। हाँ तो यहाँ पे हमने उसको राउंड ऑफ ना करके ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट इस टाइप से, तो इसमें बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज मिल जाएंगे आपको। और इसको लाइक इसमें ये बनाना भी सब इजी है, मतलब इंडिकेटर बेस और ये सब आप बना ओके सकते हो कंडीशंस। ओके आई विल एक्सप्लोर दिस। हाँ, और कुछ दिक्कत होती है तो आप इनके चैट बॉक्स में आप पूछ लो कि मुझे ये लाइक ये पर्टिकुलर में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हेल्प कर देंगे। और उसके बाद सब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। ओके और बैक टेस्ट करने के बाद तो फिर आप इसको लाइक फिर उसको आप डिप्लॉय कर सकते हो। अब जैसे यहाँ से आप बैक टेस्ट कर लो, यहाँ से डिप्लॉय कर दो। डिप्लॉय करने के लिए आपको अपना ब्रोकर लिंक कर लो इसके अंदर। तो इसके अंदर लाइक ऑलमोस्ट बहुत सभी लाइक मोस्टली ब्रोकर्स है इनकी लिस्ट के अंदर। तो 5 पैसा लाइक ये आईसीआईसी सारे डायरेक्ट है सर? आईसीआईसी डायरेक्ट भी है इसके अंदर। ओके ये रहा आईसीआईसी डायरेक्ट। लाइक मोस्ट ऑफ दी लाइक ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। आईसीआईसी डायरेक्ट ये रहा। हारमनी, एसएमसी ग्लोबल, ट्रस्ट लाइन, तो सभी मिल जाएंगे। जीरोधा, लाइक सारे करेक्ट। जो मेजर्स ब्रोकर है उसको आप लिंक कर लो और तो ये ऑटोमेटिकली फिर स्टार्ट हो जाएगा। लाइक वही एपीआई के थ्रू ही सब लिंक होते हैं इसमें। लिंक वो जनरेट करके आपने सब टोकन वगैरह जनरेट कर लिया। ओके और इसमें आप पेपर ट्रेडिंग में भी शुरू कर सकते हो। लाइक कुछ टाइम के लिए पेपर ट्रेडिंग में डिप्लॉय कर दो, आप चीजें देख लो कि सब कुछ टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा। और अगर सब कुछ टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है और जैसा आप चाह रहे हो, मतलब सब चीजें वैसी हो रही है तो ठीक है, वरना तो फिर आप इसको दोबारा से लाइक कुछ एडिट करके कुछ भी जो उसमें लग रहा है आपको चेंज। ओके तो ये लाइक अगर थोड़ी बहुत नॉलेज किसी को है ना तो इसके अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शंस है और ये काफी पुराना भी है। सबसे पहले ट्रेड टोनी था ही, बाद में आए अभी। तो जो थोड़ा पुराना है तो ये स्टेबल भी बहुत ज्यादा है लाइक। ओके क्योंकि आजकल जितने टूल्स आ रहे हैं ना, सबसे मेन इनके अंदर दिक्कत है कि कितने स्टेबल कितने हैं ये। कुछ मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रहा है तो ये प्रॉपर ऐसा तो नहीं कि हमारी पोजीशन फंस जाए। मतलब यूजर बेस इनका काफी बड़ा है। और यूएस, शायद यूएस की फर्म है ये ट्रेडट्रॉन हाँ वगैरह। या यूएस की है। हाँ, तो इनका लाइक वो भी काफी बड़ा है। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो काफी अच्छा है इनका। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि जिसको जो बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो उनको थोड़ा लगेगा कि ये सब क्या कर रहा है, क्या है एफएक्स, क्या है ये सब चीजें। बट अगर आपको थोड़ी नॉलेज है ना तो इसमें कर सकते हो, तो बहुत लाइक रास्ते खुल जाते हैं इसमें। अब जैसे इनका तो यूजर फ्रेंडली है बिल्कुल, आपने सीधा कॉल सेलेक्ट किया, बाई किया सब। अब जैसे ये वीवेब के ऊपर चल दिया है हम्म। और डाटा में अभी कोई चेंज नजर नहीं आ रहा, हाँ तो मतलब फिर मतलब बैठे ही रहो क्योंकि ट्रेंड बेरिश है, राइट? हाँ, ट्रेंड बेरिश है, डाटा भी कुछ चेंज हो नहीं रहा। पहले कितना था ना, मेरे ख्याल से 0.93 था, अभी 0.95 हो गया है। तो यानी कि और पोजीशंस ऐड हो गई हैं कॉल साइड में। तो प्राइस ऊपर जा रहा है बट पोजीशंस ऐड हो रही है। क्योंकि जब तक देखो पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं होंगी ना, इसको रास्ता ऊपर से नहीं खुलेगा तो ये जाएगा नहीं ऊपर।
अब ये इतना कर सकता है कि ये जाएगा, अब जैसे मान लो इसको ये तोड़ना है ये वाला, तो ये इतना कर सकता है कि ये जाएगा, इसके ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, जब तक ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं होगी, हाँ यहाँ से हाँ इसको रास्ता नहीं होगा तब तक। हाँ, बट ये ऐसे नहीं होगा कि ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हो रही और ये चला गया 70,500। ओके। क्योंकि इनको होना ही है। आप देखो एट दी मनी की जो है वो हमेशा ही न्यूट्रल रहता है पीसीआर, हम्म। और अगर ये न्यूट्रल नहीं है पीसीआर तो ये ऊपर जाएगा ही नहीं। अभी के लिए 17,200 जो है हमारे लिए कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो 17,200 को जा सकता है। तो अब ये क्या करेगा, अब नेक्स्ट क्या है 17,250। तो 17,250 इसलिए तभी जाएगा जब इसका पीसीआर चेंज होगा पूरा। ओके। बट मैं ज्यादा इनको फॉलो करता हूँ 100 वाली स्ट्राइक को। तो मैं यहाँ पे ये हम ये कह सकते हैं कि 17,000 जो है हमारा इमीडिएट एक सेफ वो है। हम्म। तो 70,300 का आप डेटा चेक करते रहो कि क्या हो रहा है, पीसीआर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, इन सब में चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ का तो आपका ऑटोमेटिक ऐड होगा, तो यहाँ से आपको इसमें कुछ भी चेंज होगा इधर या इधर, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा दोनों चीजें। तो आप इसको ट्रैक करते रहो कि पहले क्या था अभी क्या हो गया है, हम्म, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या कैसे हो रहा है। तो आपको थोड़ा चीजें मतलब पिक्चर क्लियर क्यों होना शुरू हो जाएगी। ओके। और ये हर 3 मिनट में अपडेट होगा एक्सेल शीट, राइट? हाँ, जो डेटा उसका 3 मिनट में अपडेट होता है वहाँ पे एनएससी की साइट पे, तो हर 3 मिनट में अपडेट हो रहा है। ओके। आपको बिल्कुल इसको लाइव देखना है तो आप जैसे मैंने वो बताया था ना गो चार्टिंग वाला, ये हाँ हाँ। इसके अंदर क्या है, ये लाइक लाइव रेट अपडेट हो रहे हैं सब पीसीआर ओके। वगैरह का, इन सब का डेटा। तो आप चाहो तो इनको भी फॉलो कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आपको थोड़ा मैनुअल करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पीसीआर का कॉलम नहीं है। ओके। पीसीआर का कॉलम नहीं है हाँ यहाँ पे। तो क्या है, अभी आप ये देख लो 70,300 पे कितना है, यहाँ पे ओआई कितना है 7.0, और यहाँ पे है 1.8। तो 1.8 डिवाइडेड बाई 7.0, तो 0.25 हमारा पीसीआर है हम्म। 17,300 पे। तो इसका मतलब ये ठीक है, अब 0.25 है। आप इसको ट्रैक कर लो, थोड़ी देर बाद फिर चेक करना कि क्या हुआ है, अभी पीसीआर कितना है, पीसीआर बढ़ा है कि नहीं हुआ, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके।
So I have one input on pyramiding without coding in case, you want to do it. Am I audible? Yes, sir. So one way is, for example, you enter it, say 100, and for every 10% up, you wanted to add some more quantity. So you can create stop loss orders at 110, 120 like that. So when it reaches 110, Right, that right. will be executed, and 120 that will be executed. Mm. So without coding, you can Right. achieve. On like fixed price you can keep like for Right. 10% or 20%, whatever be the right change. Okay. Come again, I didn't understand what did it mean? See, for example, you entered some, script at 100 rupees. Okay, If it goes 110, you want to add some more quantity. correct. So just create, as soon as you enter first one, you create order by stop loss order for buy at 110. Okay, So only when it reaches 110, that will be executed. okay, Like that, you can add more like 115 or 120. You can add more orders. So when price reaches there, it will automatically get executed. oh, okay. So every time I can put a new order. You can add in one shot, once you enter, at 100, you can add, how many orders you want. Just add stop loss orders. Okay, so you mean to say basket order with all that? Not required. There's, whether you add basket order or not, there's separate orders. Okay, One order at 110, stop loss order at 110, stop loss order at 120, or whatever, okay, you like. okay. Yeah, that's fine.
So we see some recovery in the market, but data is not changing. Like support, resistance, everything remains the same. So we can hold the trade and we can close the data. Like we can monitor the data very closely, a little closely. Like so, do we have any query? No, not for today. Perfect, perfect. So can we conclude the session and we can meet tomorrow? Yes, that's fine. Yeah. So for now we are holding 17,300 call option, and we will closely monitor the this data. And if there is any change, I will update in the WhatsApp group, Thanks, Sachinji. Okay, have a profitable trading day. Thank you. Okay. Thank you.